Hello and welcome to Rumal's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 9th October 2022. For more updates and study materials, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article basically speaks about the cutting down of oil supply by a group which is known as OPEC Plus. अब देखिए OPEC क्या है, OPEC Plus क्या है, we'll learn very shortly. The news says that organization of the petroleum exporting countries and its allies. So when we speak about the organization of the petroleum exporting countries, it is OPEC. जब यहाँ पे allies आ जाता है, it is known as OPEC Plus. Now they have decided to cut oil production by 2 million barrels per day. तो क्या क्या impact होगा globally and across India? We'll learn about it very shortly. So this can be important for our prelims. You know the groupings, the international grouping जितने भी सारे हैं वो prelims के लिए important है. Mains perspective से from GS paper it can be important from international relations point of view, and from GS paper this can be important from resources point of view. This article has been taken from the Hindu. First, we'll learn about the OPEC, then we'll learn about the OPEC Plus. OPEC, it stands for the Organization of the Petroleum Exporting Countries. You can see with the help of this world map, the members of the OPEC countries have been shown in yellow. अब ये जो OPEC है, it was founded at Baghdad in Iraq with the signing of an agreement in September 1960. तो ये form हुआ था 1960 में, and during the time of its formation, it had 5 members only. That is Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela, and it is headquartered at Vienna in Austria. अब देखिए उसके बाद द मेंबर्स यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज एक्सपांडेड सिंस देन एंड करेंटली देयर आर 13 मेंबर स्टेट्स. सो दिस आर द नेम्स ऑफ द 13 मेंबर स्टेट्स व्हिच आर करेंटली अ पार्ट ऑफ द ओपेक. यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ द स्टेट ऑफ द मेंबर्स बिकॉज कभी आपको पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक. तो अगर आपको विच इज नॉट अ मेंबर ये जानने के लिए यू शुड नो कि विच इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द ओपेक. अब कतार यूज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ the OPEC groupings, but currently it is not a member because it terminated its membership on 1st of January 2019. Now let's look at the objective of this particular OPEC. अब देखिए OPEC जो है ना, they are basically those countries जहां पे crude oil reserves ज्यादा है और जो crude oil भी produce ज्यादा करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस. अब देखिए यहाँ इनका ऑब्जेक्टिव यही है टू जितना भी यहाँ पे मेंबर्स है द मेंबर्स वुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर सो दैट दे कैन बी एबल टू सिक्योर अ fair price for themselves because they're the major exporters and producers of crude oil. तो ताकि यहाँ पे जो दाम है वो दाम कम ना हो ताकि उनको भी एक फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट मिले. दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर विच दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. So with the help of this diagram, you'll come to know that 80% of the crude oil production is only done by the OPEC countries. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 79.4 which is almost 80% शेयर जो है of the entire crude oil production of the world is done by the OPEC countries alone. ठीक है. और यहाँ पे बस 20% जो है बाकी कंट्रीज के पास बस 20% जैसा रिजर्व ही है. ठीक है. और इसमें से अगर आप देखोगे 80% में से जो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट अमंग द ओपेक इज वेनेजुएला. तो वेनेजुएला यू कैन सी इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री और वेनेजुएला के बाद आता है सऊदी अरेबिया. सो वेनेजुएला अलोन अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 25.5%. ठीक है. सो एंड अबाउट दिस ओपेक प्लस अगर आप बात करोगे ओपेक प्लस, देखिए इफ यू नो ओपेक यू विल आल्सो लर्न अबाउट ओपेक प्लस बिकॉज OPEC plus is nothing but it's only an extension or an expanded version of the OPEC. ठीक है. सो विच इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओपेक ऑन द अदर हैंड क्या है, बगदाद में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होके इट वाज फॉर्म, बट ओपेक प्लस इट्स काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो विद द एडिशन ऑफ अनदर 10 allied major oil producing countries, the OPEC is now known as OPEC plus. OPEC plus countries include 13 OPEC members, जो कि 13 ऑलरेडी मेंबर्स है OPEC के, वो तो है, प्लस यहाँ पे 10 अदर मेंबर्स है. दैट इज अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान. सो this particular countries plus the 13 OPEC countries, they form this grouping called OPEC plus. Now that you know about OPEC and OPEC plus, let's learn about this current context. So recently OPEC plus has decided to cut oil production by 2 million barrels per day. So this is the largest cut since the beginning of the COVID-19 pandemic. तो इन्होंने क्यों किया? ऑब्वियस सा बात है. देखिए जब भी सप्लाई कम किया जाता है ना तो उसके पीछे एक ही बस मोटिव रहता है, दाम को बढ़ाना. ठीक है.
तो बेसिकली देखिए अभी पहला जो बात कहा गया है रीजंस के बारे में, तो रीजंस क्या क्या है फॉर स्लैशिंग द प्रोडक्शन? ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस। तो ऑयल प्राइसेस क्या हुआ है, स्काई रॉकेटेड आफ्टर द रशियस इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड हैव सिंस बिगन टू सॉफ्टन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। सो वॉर नॉर्मलाइज और कोविड पैंडेमिक के बाद से जो क्रूड ऑयल है ना, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव रैपिडली फॉल डाउन, which is a sign of loss for the OPEC countries or the OPEC plus members. So they want to secure a minimum price of 90 USD per barrel. ठीक है, their only motive is to secure at least the minimum price of 90 USD per barrel because they feel कि इससे अगर कम मतलब दाम गिर जाता है इससे, then it would be a sign of loss for them. उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ओपेक प्लस कंट्रीज। अब देखिए यहां पे द रिडक्शन वुड बूस्ट प्राइसेस एंड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द ओपेक प्लस मेंबर स्टेट्स टू हुम यूरोप हैज टर्न फॉर ऑयल आफ्टर लेवलिंग सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया सिंस इट इन्वेडेड यूक्रेन। अब देखिए यहां पे अगर आप बात करोगे सरल सा भाषा में, तो यूरोप देखिए बिकॉज ऑफ द वॉर इट हैज लिवाइड सैंक्शंस ऑन रशिया, जो कि आपको पता होगा द वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए। सो यूरोप बेसिकली दे हैव लिवाइड सर्टेन सैंक्शंस ऑन रशिया एंड हेंस डज नॉट इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ऐसे केस में यूरोप डिपेंड करता है ऑन द ओपेक कंट्रीज, स्पेशली द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ओपेक, दैट इज द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। सो दे फील द प्राइसेस कैन बी रेज, इंडिकेशन ऑफ बेसिकली अगर यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है विच बेसिकली लीड द ओपेक ग्रुपिंग्स, सो दे फील कि इफ द प्राइसेस आर रेज देन यहाँ पे जो मतलब आप कह सकते हो कि दे विल बी एबल टू मेक मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो दिस इज बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ मोनोपोली। ठीक है, उसके बाद देयर इज ऑल्सो एन एलिगेशन अगेंस्ट रशिया कि दे मे हैव इन्फ्लुएंस्ड द ग्रुपिंग इन रेजिंग द प्राइसेस। तो यहां पे देखिए देयर आर ऑल्सो एलिगेशंस अगेंस्ट रशिया एज इट इज अ मेंबर ऑफ द ओपेक प्लस। वो देखिए रशिया ओपेक का लेकिन पार्ट नहीं है, बट रशिया इज अ मेंबर ऑफ द ओपेक प्लस ग्रुपिंग। ठीक है, नाउ इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, दैट रशिया क्या करता है, रशिया हैज इन्फ्लुएंस्ड द अदर मेंबर्स इन डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल लीडिंग टू द सर्जिंग ऑफ प्राइसेस, which will in turn allow the European nations to spend more in procuring crude oil from the OPEC countries. ठीक है, now this may finally force the European nations to lift the sanctions on Russia. ठीक है, मतलब यहां पे बस यही कहा गया है कि मान लीजिए अगर बिकॉज यूरोप इज इंपोर्टिंग फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज एक्सेप्ट रशिया, तो अगर मान लीजिए कि दाम बढ़ जाता है देन दे वुड बी फोर्स्ड टू लिफ्ट द सैंक्शंस व्हिच हैव बीन प्लेस्ड ऑन, व्हिच हैज बीन levied on Russia. Let's talk about the impact on India. But to be honest, the impact is not just on India, it will be felt globally. Because you know, any country, be it developed, developing, or the underdeveloped countries, now we are quite dependent on the energy which we derive from crude oil. So, and you should know that India imports nearly 85% of its crude requirement. The oil import bill will rise on account of the rise in prices. अब देखिए इंडिया इज एनर्जी डेफिसिट कंट्री, तो इंडिया को डिपेंड करना पड़ता है ऑन इंपोर्ट। तो अगर इतना इंपोर्ट करता है तो ऑब्वियस सा बात है जब यहाँ पे बिल आएगा तो बिल विल ऑल्सो इंक्रीज रैपिडली बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइसेस पर बैरल. The rise in import bill will not only lead to inflation and a rise in the current account deficit and fiscal deficit, but also weaken the rupee against the dollar and hurt the stock market settlement. तो देखिए ऐसा है, ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज आप देखोगे कि जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है इट विल ऑल्सो लीड टू राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑल दी अदर कमोडिटीज, है कि नहीं? बिकॉज एवरीथिंग यू सी इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस दाम से बहुत सारा चीजों का दाम बढ़ जाएगा विच विल लीड टू इन्फ्लेशन. और ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे जब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो अपना जो फॉरेन रिजर्व है तो वो भी आप कह सकते हो कि दिस विल लीड टू द करंट अकाउंट डेफिसिट and also fiscal deficit. ठीक है, and weaken the rupee. अब देखिए already you know rupee has become so much weaker against the US dollar. आज के दिन में अगर आप देखोगे रूपी आई चेक की ये गिर के 82.83 पहुंच चुकी है अगेंस्ट $1. तो अगर इस तरीके से अगर दाम बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि रूपी डॉलर के अगेंस्ट में और भी वीक हो जाए. एंड एज पर द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फॉर एवरी $10 पर बैरल इंक्रीज के कारण इन द प्राइस ऑफ द इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट, द करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इट विल वाइडन बाय $14 to $15 billion, which is almost 0.4% of our GDP. So इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन दी कमेंट सेक्शन.
The next article is about the RBI on inflation targeting. So the news says that the RBI governor Shaktikanta Das said that the central bank यहाँ पे RBI को रेफर कर रहा है, the RBI considers the communication to the government for missing the inflation target. So basically RBI has missed the inflation target. RBI has responsibility, is accountable for maintaining the inflation at some particular rate. Now because the RBI has failed, now they are going to communicate with the government, but this communication would be targeted as a privileged communication. Privilege मतलब यहाँ पे it will not be made open to the public. This will be between the government and the RBI only. ठीक है, इस न्यूज को और भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं. This can be important from GS paper 3 Indian economy point of view. This has been taken from the Indian Express. So about this article मैं यहाँ पे बस ये एज्यूम कर लूंगा कि थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी आपको पता होगा, ठीक है, और थोड़ा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे. सो विल स्टार्ट विद सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी व्हिच यू ऑलरेडी शुड नो. तो यू शुड नो व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक सिलेबस. ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द आरबीआई कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. कि किस तरीके से मनी, आप कह सकते हो कि मतलब मनी ज्यादा रहेगा इकोनॉमी में या मनी कम रहेगा, किस तरीके से मनी को मार्केट से ले आ सकते हैं, किस तरीके से मनी को एक्सपांड कर सकते हैं. सो दिस आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बाय व्हिच इट कंट्रोल्स ओवर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ. तो बेसिकली आरबीआई का काम है टू फाइट और टू कर्ब द इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो टू मेंटेन अ स्टेबल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सो इन केस ऑफ द इंडिया, अगर आप देखोगे इंडिया के केस में आरबीआई इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसे कंडक्ट करने का काम इंडिया के रेस्पेक्ट में इट इज द टास्क ऑफ द आरबीआई. नॉर्मली ये अदर कंट्रीज में भी ये सेंट्रल बैंक जो रहता है उसी का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. ठीक है, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन. और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है वो हर 2 महीने में एक बार होती है. ठीक है, तो आपको तो ये आई थिंक आपको ये पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये 2 तरीके का होता है. एक होता है आपका क्वालिटेटिव और दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव. ठीक है, सो क्वालिटेटिव इज दिस पॉलिसी इज कंसर्न हाउ मनी इज यूज. एग्जांपल यहां पे आरबीआई क्या करेगा, इट वुड बी गोइंग फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे अबाउट दिस क्वांटिटेटिव, सो दिस इज कंसर्न ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज यूज. तो यहां पे बहुत सारा चीज आ जाता है जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद बैंक रेट, उसके बाद सीआरआर, एसएलआर. आई होप आपने ये सब के बारे में सुना होगा. देन द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. तो दिस बेसिकली थिंग्स, ये जो सारे टर्म्स है या ये जो सारे कंसेप्ट है, एलिमेंट्स है, नाउ दिस आर बेसिकली सेट बाय एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई ओनली. तो ये जो सारे रेट्स है इनको आरबीआई हर 2 महीने में एडजस्ट किया यहां पे करती है थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. ठीक है, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दिस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो है इट इज डन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है, अब दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016 बाय अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट ऑफ 1935. सो दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, तो इसका पर्पस क्या, टू डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया एज आई टोल्ड यू. सो अकॉर्डिंग टू इट द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी डिसाइडेड बाय 6 मेंबर बॉडी है ये. ठीक है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है यू विल फाइंड 6 मेंबर्स. 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 मेंबर्स आर फ्रॉम the union government. So the 3 members from the RBI is the RBI governor himself, then RBI deputy governor and an RBI official. The 3 members are appointed by the government and they are basically appointed by the union government for a period of 4 years. Now this decision taken by majority, by voting on majority of vote case. अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे जितना भी वोटिंग होता है या मान लीजिए कोई भी डिसीजन के ऊपर, यहाँ पे बिकॉज देयर आर 6 मेंबर्स, तो द डिसीजंस आर टेकन ऑन बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 4 मेंबर्स ने कोई एक डिसीजन ले लिया है, देन दिस डिसीजन विल बी डीम्ड टू बी पास्ड. ठीक है, और अगर मान लीजिए टाई है, दैट इज अगर 3 मेंबर्स का यहाँ पे टाई है, तो यहाँ पे जो टाई है उसे सॉल्व करने के, उसे रिजॉल्व करने के लिए द डिसीजन विल बी टेकन बाय द गवर्नर. ठीक है, बाय द आरबीआई गवर्नर. Or before establishment of the monetary policy committee in 2016, the monetary policy was solely decided by the RBI governor. तो 2016 से पहले यहाँ पे before the amendment of the RBI Act of 1935, the monetary policy जो है the review was only done by the RBI governor. That is यहाँ पे जितना भी सारा ये जो values होगा, there is bank rate, CRR, SLR, this would be set by the RBI governor himself. But अभी लेकिन यहाँ पे 6 members का एक कमिटी बनाया गया है जहाँ पे 3 members RBI का है और बाकी 3 members आपका गवर्नमेंट की तरफ से रहता है. The monetary policy review is done every second month, as I already told you.
Now, about the inflation targeting, you should know about the Monetary Policy Framework Agreement as well. So, on 20th of February 2015, the RBI and the Government of India, they have signed the Monetary Policy Framework Agreement. So, under this agreement, देखिए बहुत important चीज है that the RBI will be responsible. It is the sole responsibility of the RBI for inflation targeting and achieving price stability in the economy. अब देखिए inflation आपको पता ही है कि दाम कभी-कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी-कभी नहीं बढ़ता है. अब देखिए ये जो दाम जिस हिसाब से बढ़ता है, there is a percentages. The percentages should be kept in certain limit. It is the task of the RBI. RBI का ही ये task है. It is accountable if it is not being able to contain or keep the inflation within limits. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए permissible limits क्या है? The permissible limits for the RBI has been given as 2% and 6%. 2% being the lower bound and 6% being the upper bound. तो इस 2% and 6% को इसे कहा जाता है 4+2 भी यहाँ पे 4+ minus 2 भी कहा जाता है. That is, 4 minus 2 is 2% and 4 plus 2 is 6%. तो जहां पे जो लोअर इन्फ्लेशन टारगेट है ना, लोअर इन्फ्लेशन टारगेट शुड बी 2%, इससे कम नहीं होना चाहिए. ऑन द अपर लिमिट इज परमिसिबल लिमिट इज 6%, दैट इज इससे ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है, बट ऑब्वियस सा बात है कभी कभी तो इससे ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में इसी के कारण एक और भी बात लिखी गई है कि इफ द आरबीआई फेल्स टू कीप द इन्फ्लेशन, अगर वो फेल कर जाता है तो कीप द इन्फ्लेशन, टू कंटेन द इन्फ्लेशन विद इन द 6% एंड द 2% लिमिट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर of the monetary policy of the RBI. और इस केस में the Reserve Bank जो it will be held accountable. The RBI will have to explain reasons and suggest corrective measures to the Union government. तो RBI को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे written explanation देना पड़ेगा कि क्यों why the RBI has failed to contain the inflation, और यहाँ पे ये भी बताना होगा कि what are the things that we are going to take in the future so that the inflation जो है, inflation will be coming under the given and the permissible targets only. अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 consecutive quarters में अगर मान लीजिए कि the इन्फ्लेशन इज नॉट बीइंग कंटेन, अभी यहां पे आरबीआई को एक्सप्लेन करना होगा कि आप आगे इसे कंटेन करने के लिए क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इन्फ्लेशन टारगेट जो है इट वाज सेट टिल March 31, 2021, बट दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 26. तो 2021 में लास्ट ईयर में इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल द ईयर 2026. तो अभी भी टारगेट क्या है, 4+-2 ही है. दैट इज लोअर लिमिट है 2%, अपर लिमिट है 6%. So I believe now you currently have some idea about the monetary policy working of the RBI. So the current news says the CPI, that is the retail inflation, has breached 6%. Breach मतलब यहाँ पे जो 6% है उससे काफी ऊपर चला गया है. अब आपको पता ही है कि चीजों का दाम किस तरीके से बढ़ रहा है. जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है. ठीक है, अब यहाँ पे ये नोटिस हुआ है कि 6% का जो मार्क है ना, जो परमिसिबल लिमिट था आरबीआई के लिए, अब वो लिमिट में जो सीपीआई वो सीपीआई रहा ही नहीं. यहां पे कहने का मतलब है फॉर द लास्ट 8 मंथ्स, ठीक है, लास्ट 8 मंथ्स अगर आप देखोगे 6% से काफी ऊपर रहा है. ठीक है, इसी कारण से यहां पे देखिए, और करेंटली अगर आप देखोगे अगस्त महीने तक ये 6% से ऊपर रहा, और अगर यहां पे सितंबर का महीना, अगर ये करंट महीने में भी अगर ये 6% से ऊपर रहा, जो कि ऑब्वियस सा बात है वो रहेगा, आरबीआई ने भी एडमिट किया है कि दिस इज गोइंग टू बी अबव 6% ओनली. तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैंने आपको जो बताया था अबाउट द कंडीशन ऑफ 3 सक्सेसिव क्वार्टर, तो वो जो यहां पे क्वार्टर जो यहां पे 3 सक्सेसिव क्वार्टर का जो क्राइटेरिया था वो इस बार ट्रिगर हो जाएगा. ठीक है, सो द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू बी अबव 6%. इस केस में क्या हो जाएगा, 8 मंथ्स के बाद अभी 9 मंथ्स होगा. 9 मंथ्स विल बी व्हाट, 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स. ठीक है, इट विल ट्रिगर द क्लॉज ऑफ द एग्रीमेंट वेयर एन एक्सप्लेनेशन विल हैव टू बी गिवन बाय द आरबीआई. मैंने आपको बताया था अगर ऐसा होता है देन इट विल बी टर्म्ड एज द फेलियर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, एंड इन दिस केस द आरबीआई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड इट विल बी टास्क ऑफ द आरबीआई टू गिव अ रिटन एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा हुआ है और हम आगे क्या करेंगे. ठीक है, तो ये जो है ना, इस बार जो ये हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम. ठीक है, जब से ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, तो ये आने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द आरबीआई विल बी मेड टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन इन द लेटर. तो कभी भी ऐसे 9 मंथ्स के लिए 6% से ऊपर कभी था नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम. ठीक है, और इसी के केस में, इसी के रेस्पेक्ट में आरबीआई गवर्नर दैट इज शक्तिकांत दास ने कहा है, द सेंट्रल बैंक दैट इज द आरबीआई कंसीडर्स द कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट फॉर मिसिंग द इन्फ्लेशन टारगेट एज अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन. अब इनका यही कहना है कि ऑब्वियसली हम यहां पे देंगे एक्सप्लेनेशन, वी विल बी गिवन अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट, हम देंगे, लेकिन दिस विल बी अ
privileged communication, मतलब this will not be made available to the public. आप और हम यहाँ पे हम ये नहीं यहाँ पे we won't be able to know कि RBI ने यहाँ पे क्या क्या बात दिया है और किस तरीके से इसे रिकवर किया जाएगा इन्फ्लेशन को, ये सब हमें नहीं पता होगा, because Shaktikanta Das, that is the RBI governor, has termed it as a privileged communication, and as such it will not be made available to the public. एंड रिगार्डिंग दी यहाँ पे इसी रेस्पेक्ट में शक्तिकांत दास ने यह भी कहा है कि इट इज एक्सपेक्टिंग द इन्फ्लेशन टू कम डाउन टू क्लोज टू द टारगेट ऑफ 4% ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years. तो यहाँ पे बस यही कहा गया है कि 2 साल के अंदर में 4% के नीचे इन्फ्लेशन आ जाना चाहिए. अभी करेंटली जो 6% से ऊपर है, ठीक है, तो उनका कहना है कि 2 साल के अंदर ये 4% के नीचे आ जाएगा. और यहाँ पे कहा गया है कि जो करंट फिस्कल ईयर है, तो ये करंट फिस्कल ईयर में द इन्फ्लेशन इज सेट टू बी एट एन एवरेज ऑफ 6.7%, जो कि ऑब्वियसली ये which is higher than the permissible upper limit. It will come at 7.1% in quarter 2 and 6.5% in quarter 3. अब देखिए किस तरीके से RBI is targeting to gradually contain and decrease and reduce the inflation percentage. ठीक है, so quarter 2 में is expecting it to be at 7.1%, quarter 3 में ये कम हो गया 6.5% और quarter 4 में, that is the last quarter of the current fiscal year में 5.8% में आ जाएगा. ठीक है, और quarter 1, that is next financial year में it will be further reduced to 5.1%. ठीक है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है. अब यू शुड नो अबाउट द कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जो न्यूज़पेपर या न्यूज़ में आता है. उससे अगर आप फूड एंड फुल, ये जो इन्फ्लेशन है, दैट इज फूड एंड फुल को अगर आप निकाल दोगे तो दिस विल बी नोन एज द कोर इन्फ्लेशन. दिस आर बेसिक इकोनॉमी. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन. इफ यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट दिस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द RBI, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नाउ सम गुड न्यूज फ्रॉम Gujarat in the sports section. So the news says कि Mepung Lamgu lived up to expectations by clinching a gold medal in wushu. ठीक है, in the ongoing national games which are currently going on in Gujarat. ये तो मेंस में नहीं पूछेगा, but because these are two women who have been able to clinch the gold and silver medal, so you can use such names in any essay अगर आपको पूछा जाता है about the women empowerment in case of the north eastern state के बारे में. ठीक है, this can be important for the prelims, for the mains, and this has been taken from the Arunachal Times. So it's a very simple news जहाँ पे कहा गया है कि Mepung Lamgu lived up to expectations by clinching a gold medal in the wushu on the ongoing national games in Gujarat. तो national games यहाँ पे अभी भी currently it is going on in Gujarat, which is basically यहाँ पे 6 cities में it is taking place, including Ahmedabad, Vadodara, Surat. All right. तो she clinched the medal in Tajiquan and Tajijian all-round event. तो ये जो Tajiquan is then basically these are a part of the wushu only. It is an international Chinese martial art practice both for defense training and health benefits. ठीक है, the term of Taji जो है, it refers to a Chinese philosophy of the forces of yin and yang which are related to the moves. So on the same day itself, on a fruitful day, compatriot that is belonging to the same state Arunachal Pradesh, Rialu Bu also won a silver medal in the same event. तो इसी event में Rialu Bu has been successful in clinching the silver medal. So which set it is gold and silver medal. तो currently Arunachal has been able to secure 4 medals. ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 था, अब 2 मेडल और मिल चुका है. So currently Arunachal has got 4 medals, 3 gold medals and 1 silver medal. The final list I'll be taking up whenever the final list will be out. The next article is from the environment. It's from Arunachal Pradesh as well. It's very important. So it's about the 68th Wildlife Week. So various wildlife conservation programs were organized at the Namdapha National Park as part of the 68th Wildlife Week celebration in the Changlang district. This can be important from GS paper and geography point of view and from GS paper 3 biodiversity point of view. So basically to mark this event, बहुत सारे event जैसे कि drawing, essay writing, extempore speech. Now these competitions were organized at different schools in and around Miao or the Changlang district. This has been taken from the Arunachal Times. So about this particular national week, so the National Wildlife Week is annually celebrated. ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है across India between 2nd to 8 October. इसे याद कर लीजिएगा, ये आपको जो टाइम फ्रेम है ये आपको पूछा जाएगा about the National Wildlife Week. ठीक है, ये एक इंडियन इनिशिएटिव है which is aimed to protect and preserve the flora and fauna of India. In 2022 we are celebrating the 68 Wildlife Week. ठीक है, जो ये पहले स्टार्ट हुआ था 57 में, तो currently 2022 में we are celebrating the 68 Wildlife Week. अब देखिए यहाँ पे थीम मैंने दे दिया है which is very important. It is about the recovering key species for ecosystem restoration. यहाँ पे थीम और डेट्स है, you know this important dates, कभी आपको एग्जाम में पीटी में आपको पूछा जाएगा. About the history किस तरीके से आया है. Now this is an initiative of the Indian Board of Wildlife.
ठीक है, which is constituted, and the idea of wildlife week was propounded by them only, by this particular board, which was conceptualized in 1952 में, ठीक है, to raise awareness about the long term goals of protecting the wildlife of India. और यहाँ पे 1952 में इसे conceptualize किया गया था. 1955 से ये start हुआ था celebration of this particular day, but initially it was celebrated as the wildlife day. Currently आप देखोगे it is the wildlife week. तो ये कब से start हुआ है? It has started in 1957. So 55 से it was been celebrated as a day, but because it's a very significant day, तो one day maybe not enough for the celebration, तो इसीलिए celebrate किया जाता है as a week from 1957 onwards. So currently it is about the 68 wildlife week. इसी topic के basis पर there's a prelims practice question. Please answer in the comment section. Now these were the questions that I had asked in the previous video. So let's look at the answers. So the answers for the questions are, Alright, about the Arctic Ocean, अब देखिए बाकी यहाँ पे जितना भी बताया गया about दक्षिण गंगोत्री, मैत्री and भारती, these are based in the Antarctic region में, ठीक है, these are about the Southern Pole Expedition के बारे में, और Arctic Ocean के लिए it's about the Himadri. And the National Commission for the SCs you'll find this in the Constitution, Article number 338. It is a constitutional body. So which of the following is the first Apatani feature film? We have discussed about this in the previous video. It is the Tabio Milo. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye-bye and take care.